University of Delhi attracts lots of students from across the country. पर दिल्ली आकर पहले जायज़ा नहीं ले सकते कि हमारा कॉलेज कैसा होने वाला है, कैसा दिखने वाला है. So here we are with a special series Do You Beat College Tours? क्योंकि कॉलेज जाने से पहले कॉलेज को जानना बहुत ज़रूरी है. I, Nanta Serene, will be your host for today. Today we have reached the Hindu College, which is recognized as one of the most distinguished colleges of University of Delhi. With its red brick walls, green surroundings and comfy vibe, this college is a complete charm. Seniors का कहना है कि फर्स्ट ईयर शक्ल से पता चल जाता है कि ये फर्स्ट ईयर्स है. So don't just believe first years. Here we have a very special guest, Shashwat Jain. He has a very notable name in the Delhi University theatre circuit and is a former member of IFTITA. He is the alumni of DU 2017. Thank you so much, Shashwat, for taking out your valuable time for us. Thank you for having me. Let's get started with the Hindu campus tour. So Shashwat, how are you feeling coming back to this building again? I mean, a lot of things have changed, so do you feel about it? Actually, I feel 18 again. I remember जब पहली बार मैं कॉलेज में आया था, it was very exciting. और मुझे कॉलेज के बारे में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पता थी, बहुत गूगल में करके आया था. And this is the first area, ये वाली रेलिंग पे I remember. This is where I entered from. I saw some people going from here. मैं बड़ा स्टूडियस सा बच्चा था. तो I think कि अच्छा यहाँ पे कुछ फॉर्म होगा मेरे लिए जो मुझे पढ़ना है. यहाँ पे there was a long line, a long queue. मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था. Then I saw people going around. And that was the first memory. But yeah, it feels really nice. It feels like coming back to home. Even I remember my first day when I first came to North Campus. So I was totally confused when I came to this gate and guards weren't allowing me because I didn't have the ID card. Okay. So I was just peeping through the gate and I was like, building ही नहीं दिख रही है. I was just like, हर जगह पेड़ पौधे हैं, building है भी कि नहीं है. So I was so confused the first day. It was exactly like that. So we have finally reached the NSS lawns and the principal lawns. NSS lawns for me are the lawns जहाँ पे हमेशा donation camps होते हैं different societies के, different departments के. And when it comes to principal lawns, of course, हर farewell की, हर department की farewell की photos यही होगी, society group photos यही होगी. It is the most prettiest location of the college. So actually हमारा एक बहुत grand event यहाँ पर हुआ था, I remember. So there was a time जब हमारे college को NAAC accreditation मिलना था. So you guys came in much later when we were A+ rated, A1 rated I guess. And उससे पहले we had a very major event और यहाँ पे alumni, I remember a lot of our alumni were here. विशाल भारद्वाज, इम्तियाज़ अली, politicians were here. स्मृति ईरानी had come, प्रकाश जावड़ेकर had come. And यहाँ पे ऐसे टेंट्स लगे हुए हैं, it's pretty और यहाँ पे हर जगह decoration हो रहा है. I'll tell you about other memories from the theatre background here because Hindu for me is IFTITA. Recently even we've met Imtiaz Ali. Oh, because recently he came to the college and we all were there. Literally students from every college came to see him. And it was such a wholesome vibe. He was telling his memories related to when he was in this college. It was literally so beautiful seeing him. It was really nice. Okay, so this is the admin block of the Hindu College and यहाँ पे सभी ने एक या दो चक्कर तो लगाए ही होंगे अपना कोई लेटर, कोई एप्लीकेशन, कोई परमिशन देने के लिए. लेकिन थैंकफुली हमारे पास संजय भैया है, वो हमारे रेस्क्यूअर है. कोई भी परमिशन चाहिए हो वो जल्दी से जल्दी आपका काम करवा देंगे. एंड आई एम श्योर आपके टाइम भी संजय भैया ने बहुत हेल्प करी होगी. एक्चुअली सो मैं अपनी सोसाइटी का एडमिनिस्ट्रेशन इंचार्ज था. सो मेरा काम यही था कि मैं रोज़ संजय भैया को परेशान करूँ, पर्चे लेकर आऊँ, परमिशन लेकर आऊँ. एंड इस कॉरिडोर में मैंने बहुत टाइम अपना बिताया है. एंड संजय भैया हैज़ बीन अ बिग सपोर्ट थ्रू आउट. और उनकी क्वालिटी ये है कि वो हर बच्चे को बिल्कुल अपना बच्चा करके मानता है. सो स्टिल आई टॉक टू हिम. अभी वो अंदर है, वो कैमरा में आना नहीं चाहते. बट या ही इज़ बीन अ बिग सपोर्ट एंड आई एम वेरी हैप्पी स्टिल हियर. सो अबाउट द एडमिन ब्लॉक यू कैन सी ऑलरेडी आपको पता होगा द प्रिंसिपल्स ऑफिस, वाइस प्रिंसिपल्स, आगे फिर और ऑफिसेज हैं. सो हमारी एक बहुत पेक्यूलियर आदत क्या थी मेरी, दैट इन द मॉर्निंग व्हेन आई यूज्ड टू कम इन माय थर्ड ईयर, सबसे पहले मैं यहाँ पर आता था और मैं अपनी एप्लीकेशन जो होती थी चेक करता था कि वो कितना नीचे हैं और मैं उनको ऊपर रख देता. आई यूज्ड टू डू दिस बिफोर संजय भैया कैन कम एंड चेक. एंड अगर मुझे अंदर मैम दिख जाती थी तो आई यूज्ड टू से हाय हेलो मैम, हाउ आर यू, क्या चल रहा है. She was always very nice to us. Ma'am was very nice to us. You can never say good morning. She'd be like hi, and yes. she's so sweet about it. She's delightful. Yes. And there's Veena ma'am also, the vice principal. Yes. So yeah, and in the staff room, as you can see, so a lot of our teachers used to just, they were always very kind to us.
हम अपनी परमिशन लेकर जाते थे, डाउट्स वगैरह लेकर जाते थे। डाउट्स कम ही होते थे क्योंकि पढ़ाई तो कौन करता है कॉलेज में। बट या सो इन कॉरिडोर्स में हमने बहुत टाइम बिताया है। यू कैन सी ऑल द नोटिस बोर्ड्स हियर फॉर एवरी सोसाइटी। एक पूरा एनुअल डे होता था कॉलेज का, जब हम हर कोई अपने अपने बोर्ड्स पे काम करता था। सो इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स इन हिंदू कॉलेज आर टेकन वेरी सीरियसली एंड ईच स्टूडेंट इज सो एक्साइटेड टू डू इट। सो दैट्स द बेस्ट मेमोरी and my favorite place of all time, the auditorium. So this is the foyer of the auditorium, and this is a famous Sanganeri auditorium of the Hindu college. And I remember जब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था और अटेंडेंस तो थी नहीं फर्स्ट सेमेस्टर में, तो मैंने लिटरली हर डिपार्टमेंट की फेयरवेल, चाहे हर सोसाइटी, हर वर्कशॉप सब अटेंड किया है इस ऑडिटोरियम में, बिकॉज एक डिफरेंट वाइब आती है इस पूरे ऑडिटोरियम में बैठ के. सो लेट्स गो इनसाइड द ऑडिटोरियम एंड चेक दिस आउट. Finally reached the auditorium. So Shashwat, tell me, you have a lot of memories to this as you were a part of Ibtida, तो सब कुछ यही हुआ करता होगा. Actually, so auditorium बहुत स्पेशल जगह थी मेरे लिए थ्रू आउट कॉलेज. आई रिमेंबर द फर्स्ट डे जब हमारा ओरिएंटेशन था, सिटिंग समवेयर ओवर देयर, और ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं था जैसा कि आप देख रहे हैं. इट वाज वे मोर क्लासी. देयर व्हाई आई से क्लासी इज बिकॉज यहाँ पे बड़े बड़े पंखे थे जैसे पुराने थिएटर्स में होते हैं, और ये लकड़ी की चेयर्स थी. बट दिस ऑलवेज फेल्ट वेरी कम्फी. और आई वाज सिटिंग समवेयर ओवर देयर विद माय पेरेंट्स, आई रिमेंबर. और हमारे उस समय जो प्रिंसिपल थे वो कुछ स्पीच दे रहे थे, एंड उससे पहले आई सॉ सम स्टूडेंट, शी वाज प्रॉब्ली इन द थर्ड ईयर, और उसने ना ऐसे पोडियम पर आके कुछ बोला, एंड आई वाज एनचैंटेड, एंड आई टोल्ड माय फादर दैट वन डे आई विल बी देयर. एंड इट सो हैपेंड कि जब भी हम कॉलेज में आते थे, इब्तिदा हैपेंड, एंड देन ऑल ऑफ आवर प्रैक्टिसेस, स्टेज प्रैक्टिसेस यूज्ड टू हैपन हियर. ऑडिटोरियम मिलना बड़ी स्पेशल चीज़ होती थी स्टूडेंट्स के लिए, परमिशन नहीं मिलती है आजकल. पर पर्टिकुलरली अब रिसर्च सेंटर में इब्तिदा वाले और सृज्या वाले लड़ रहे होते हैं उनको प्रैक्टिसेस करने के लिए. बट इट इज़ द क्वालिटी ऑफ द एक्चुअली द वाइब. वो वाइब हमें चाहिए होती है, एंड इट इज़ वेरी वन ऑफ द ग्रैंडेस्ट ऑडिटोरियम्स इन द इंटायर दिल्ली यूनिवर्सिटी. तो हमारा जो कॉलेज का ऑडिटोरियम है दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट वंस, और जो स्टेज आप देख रहे हैं ये भी वन ऑफ द बिगेस्ट वंस है. एंड अब तो पूरा रूपांतरण इट्स जस्ट लाइक PVR सिनेमा हॉल. बट या सो हमने यहाँ पे एक बहुत फॉन्ड मेमोरी ये है दैट हमारा फ्रेशर्स यहाँ पे हुआ. आई होस्टेड अ लॉट ऑफ इवेंट्स हियर. हमने बहुत सारे फ्रेशर्स यहाँ पे होस्ट किए थे, एंड देन वी ऑल्सो गॉट अ चांस टू शोकेस आवर स्टेज प्ले वंस टू अनुराग कश्यप. तो ऐसे वो यहाँ पे फ्रंट रो पे बैठे थे, एंड हम सारे ऐसे देख रहे हैं क्या मतलब प्ले चल रहा है, अनुराग कश्यप आया, नो बिग डील, जस्ट वाचिंग अ प्ले, इट्स फाइन. बट या दैट हैपेंड. एंड इलेक्शंस, कॉलेज इलेक्शंस, तो जब प्राइम मिनिस्टर स्पीच होती है, दैट इज़ वन ऑफ द ग्रैंडेस्ट टाइम्स यू कैन इमेजिन, एनी स्टूडेंट इन यू कैन इमेजिन. और ये पूरा ऑडिटोरियम खचाखच भरा होता है ऊपर तक, एंड इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस यू कांट फॉरगेट. मैं आई थी और यही इम्तियाज़ अली जी बैठे हुए थे, और यहीं पे इब्तिदा की सारी परफॉर्मेंसेज हुए थे, और हम ऐसे सेकंड रो में 2-2, 3-3 बैठे हुए जस्ट टू सी कि क्या चल रहा है. इट वाज अ होल डिफरेंट वाइब फॉर अस. और ऐसा भी होता था दैट कॉलेज में कई बार जैसे कभी मन ना लग रहा हो या कुछ आपको लिखना हो, तो वी यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम राइटिंग एंड थिंकिंग अबाउट स्टफ. सो आई यूज्ड टू कम टू कॉलेज, और मैं अकेला बस कहीं जाके बैठ जाता था, और यहाँ पे जो भी चल रहा है वो चल रहा है. आई एम जस्ट लुकिंग एट देम एंड जस्ट थिंकिंग, एंड इट वाज जस्ट वेरी, आई थिंक दिस इज़ वेयर आई रियलाइज दैट आई रियली लव स्टेज, एंड आई वांटेड टू डू समथिंग रिलेटेड टू स्टेज. तो राइट नाउ जो मेरा जॉब है दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली स्टेज, बट जो भी मुझ में बोलने की कला है अगर आई है, जो एक लहजा है, ठहराव है, दैट केम समवेयर इन दिस ऑडिटोरियम एंड दैट टू द लॉन्च ऑफ कोर्स. Of course, Ibtida is the main reason for that. Okay, so this is the most famous tree of Hindu college known as the Virgin tree. अब इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं बताऊंगी मैं, क्योंकि फिर सब बता दूँ तो एक्सपीरियंस कैसे करेंगे आप लोग. ठीक है, तो बस मैं यही बताऊंगी कि इस ट्री के साथ एक दमदमी माता होती है. अब तो एक्टर एक्ट्रेसेस भी होते हैं. अच्छा, तो इक्वालिटी में आ गए हम लोग. बिल्कुल इक्वालिटी में आ गए. एक्टर भी होगा, लड़कियाँ क्यों पीछे हटे, एक्टर भी होगा. और इससे बस यही प्रेयर होती है कि चाहे आप, ताकि आप भी एक ना एक दिन BRC लॉन्च में मेकआउट कर सके. एंड बाकी तो आप समझ ही गए होंगे, बट इट्स वेरी फेमस. सो आप देख सकते हैं, दिस इज द मोस्ट फेमस ट्री. और एक्चुअली द वे यू सी इट, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं थी. दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट कवेटेड ट्रीज, स्टिल इज. और इसकी क्वालिटी ये थी कि इसके चारों ओर एक बहुत बड़ा चबूतरा बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, देयर वाज अ सिटिंग एरिया, एंड दिस यूज्ड टू बी जस्ट लॉन्स. यहाँ पे कुछ भी नहीं था.
एंड हमारी जितनी भी सोसाइटीज़, जो भी कॉलेज की जितनी सोसाइटीज़ हैं, जो भी वो ऑडिशंस करते थे, जब नया रजिस्ट्रेशन होता था तो ऐसे चारों ओर इट वाज अ फेस्टिव माहौल हर जगह. यहाँ पे बहुत सारी शूटिंग्स आपने देखी हैं, रॉकस्टार एवरीवन इज अवेयर, सो वो यहाँ पे शूट हुआ था. एंड दिस लॉन दैट यू सी, दीज आर द लाइब्रेरी लॉन्स, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है. बट आई रिमेंबर वन वेरी डिस्टिंक्ट मेमोरी. सो इट वाज माय थर्ड ईयर और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर इलेक्शंस थे, तो हमारे जो कैंडिडेट थे भविष्य मेहता, ही हैड वन. एंड आई रिमेंबर दिस फ्रेंड ऑफ माइन, ईश्वर प्रियदर्शी. ईश्वर वाज देयर, very close friend of Bhavishya also. He was in the ministry also. I remember him, जैसे results आए, सब लोग यहाँ वेट कर रहे हैं, क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है. He came out running. यहाँ पे आके he just shouted and he howled, we won, हम जीत गए. And it was a celebration after that. So I remember मैं यहीं कहीं खड़ा था and I saw him and that just sparked something in me. That is one of the most cherished memories I have from college. होपफुली फ्रेशर्स के आने से पहले ये कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाए. और यहाँ पे बहुत लंबी लंबी लाइन लगती थी. मुझे याद है हमारे जब नए बच्चे आते थे परमिशंस के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए. सो वो धूप में, स्कॉचिंग हीट में, जैसे आप फिल्मों में देखते हैं, वो सब हमने जिया है. सो या थैंक यू वर्जिन ट्री, यू बीन वेरी हेल्पफुल. Yes, it will be helpful for me जब Feb 14 आएगा, क्योंकि अभी तक मैंने देखा नहीं है, तो we'll see the parade Feb 14 को. बहुत काम करता है. ठीक, I'm manifesting काम कर जाए. ठीक है. 9th block of the Hindu College and you can see the new CAT block also. यहाँ हिंदू का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आपको इसी CAT ब्लॉक में मिलेगा. ऑल्दो AC नहीं है, बट ठीक है, सब चलता है. And I remember my first memory here. It was my EVS class and I was almost going to faint, all thanks to the दिल्ली की गर्मी. तो आई बस मेरी यही मेमोरी है यहाँ से कि इस रूम्स में बैठना है तो बहुत आपको गर्मी तो लगेगी. दिस इज़ योर रिसर्च सेंटर एंड जिनको नहीं पता, हिंदू कॉलेज ने रिसर्च सेंटर ऑफर किया है जहाँ पे डिफरेंट लेबॉरेटरीज़ है, स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं. और दिस इज़ बेसिकली द प्लेस जहाँ पे इंटरनेट सबसे ज़्यादा आएगा, तो बच्चे यही इसके आसपास मिलेंगे आपको. एंड लेट्स गो टू द एम्फी थिएटर नाउ. द एम्फी थिएटर ऑफ हिंदू कॉलेज, एंड ये सबसे सुंदर जगह है हिंदू कॉलेज की. चाहे यहाँ पे हर सोसाइटी इवेंट होता है, चाहे नक्षत्र फैशन सोसाइटी की रैम्प वॉक्स हो, या फिर आरंभ वेस्टर्न डांस सोसाइटी की डांस प्रैक्टिस चल रही हो, नॉर्थ ईस्ट सेल का फेस्ट, सब यहाँ होता है. तो जब भी बोर हो रहे हो, पता ना हो 2 घंटे बीच में क्या करें, यू कैन एनी टाइम कम टू एम्फी थिएटर एंड यहाँ पे आपका मनोरंजन खुद ही हो जाएगा. बट वेन एवर आई टॉक टू सीनियर्स, they are like they miss how much they miss Pam Cafe and Manish Bhaiya ka individual stall of samosa. So do you also feel the same about it? Definitely. मैं अभी वही देख रहा था कि यहाँ पे इतना कुछ कंस्ट्रक्ट हो गया है. So earlier again it was all plain here. यहाँ पे we used to have the Pam Cafe, pizzas and more. And वहाँ पे हमें बहुत ही अमेजिंग बर्गर्स, पास्ता, जिस तरह की चीज़ें मिलती थी. We used to get energy drinks, जो मुझे शुरुआत में लगता था ये हमें अल्कोहल क्यों बेच रहे हैं. तो या लाइक आई ग्रू फ्रॉम बीइंग वेरी वेरी नाइव टू बीइंग वेरी वेरी नॉट नाइव. एंड यहाँ पे बहुत सारे बच्चे चिल करते थे. एंड दिस इज़ द हॉस्टल एरिया. यहाँ पे बहुत एक बार धमाकेदार चीज़ ये हुई थी दैट व्हेन वी वन द इलेक्शंस अगेन, आई वाज टेलिंग यू, देयर वाज अ सेलिब्रेशन लाइक होली. आई रिमेंबर ढोल वोल बज रहे हैं, हम अपना ऐतदा का पूरा बैंड बाजा लेकर आ गए थे एंड वी सेलिब्रेटिंग, रंग उड़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है. So yeah, now it's all changed, but it's nice to see that we have a research center, we have a new academic block. The amphitheater is beautiful. ऐसा India Habitat Center में मैंने देखा है. But yeah, college is doing really good, and I'm really happy कि अब आपके जो batches हैं, जो आगे आने वाले batches हैं, we'll see a very different face of Hindu. But we personally miss Pam Cafe, क्योंकि बहुत सुना मैंने तंदूरी पास्ता का बहुत सीनियर्स से, तो personally want to taste that, पर कोई बात नहीं, मनीष भैया के समोसे काम आ जाएंगे. वो अभी भी है. हाँ, वो अभी भी है. BRC lawns of Hindu College, Bharat Ram Center, House of Culture, and this is the most relaxing place you can ever be. 2 क्लासेस के बीच में अगर ब्रेक मिला तो सो जाओ यहाँ पे. बाकी कपल्स का तो मेकअप सेशन यहाँ होते रहते हैं. मेरी जेंडर बॉडी मीटिंग्स भी यही होती है. तो कभी भी खाली पीस ऑफ माइंड में बैठना हो, you can just come here and you just lie down. It's such a relaxing place. So do you have any memories with BRC lawns? I'm sure ये सेम ही है. हाँ, यहाँ पे वही मैं आपको कह रहा हूँ. All the same. ये एरिया लकीली चेंज नहीं हुआ. बट आई रिमेंबर एक बार आई थिंक इन माय फर्स्ट ईयर वी हैड टू डू सम डांस प्रैक्टिस. आई थिंक हमारा फ्रेशर्स था या कुछ था, सो वी हैड कम हियर. और यहाँ पे मेरे और एक मेरे फ्रेंड ने, वो सिलसिला में था, और हम दोनों ने सबको डांस सिखाया था अपने पूरे स्टैट्स के बैच को. दैट वाज वन वेरी नाइस. यहाँ पे अंदर मुझे लगता था जाना अलाउड नहीं है, सो आई नेवर डेयर टू गो इनसाइड.
But yeah, nice to see something is same. और यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली तो अलंकार सिंगिंग सोसाइटी की प्रैक्टिसेस भी होती है बिकॉज अगर यहाँ पे कम आवाज़ हो वहीं पे चलता है सब कुछ. सो इट्स अ प्रीटी लॉन्च फॉर द हिंदू कॉलेज. ओके सो दिस इज़ द कैंटीन एरिया ऑफ अ कॉलेज एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती है जो मेरी तो स्पेशली फेवरेट है. और स्टीफेंस के, रामजस, हंसराज, सबके लोग यहाँ आते हैं खाने के लिए. राजमा चावल तो फेवरेट है ही, छोले भटूरे, मनीष भैया के समोसे सबसे फेवरेट. एंड ये जब भी क्लासेस ओवर होती है हर हिंदू स्टूडेंट यही पाया जा सकता है. नए स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा. इफ़ यू जस्ट मूव द कैमरा लिटिल हियर, तो आपको जो सामने रास्ता दिख रहा है दैट यूज्ड टू बी चोर गली. इसको चोर गली इसलिए कहा जाता है बिकॉज बहुत ही संकरा सा रास्ता है जो सीधा किरोड़ीमल कॉलेज पे खुलता है. एंड दिस यूज्ड टू बी अ शॉर्टकट फॉर अस. और कमला नगर के लिए भी शॉर्टकट है. सो बहुत से बच्चे यहाँ से आते थे. एंड हियर यू कैन सी इन दिस कॉरिडोर हियर वी हैव द वॉल ऑफ डेमोक्रेसी. पूरे वॉल पे अभी जब मक्का आ जाएगा फेब के टाइम में, देयर बी अ लॉट ऑफ ग्राफिटी, अ लॉट ऑफ आर्टिस्टिक क्रिएशंस यहाँ पे किए जाएंगे. तो ये एक्चुअली एक ऐसा वॉल है जहाँ पे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं. एंड देयर थॉट, देयर आइडियाज़ जो भी वो पिक्चराइज करते हैं, दे आर वे बियॉन्ड द प्रेजेंट. बहुत ही अच्छे आइडियाज़ अबाउट यू नो. अभी मक्का आते ये सब भर जाएगा, पूरा दोबारा पेंट हो जाएगा. लाइक इट्स, आई थिंक इट्स मेस्मराइजिंग कि हम इतना आगे का सोच सकते हैं. सो दैट्स जस्ट ब्रिलियंट. सो दिस इज़ द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ऑफ हिंदू कॉलेज एंड जहाँ आप देख सकते हैं पूरा स्पोर्ट्स फील्ड है, बहुत बड़ा है. कुछ भी करिए यहाँ पे, फुटबॉल खेलिए, बैठ जाइए, गेम्स खेल लिए, कुछ भी करिए यहाँ पे. और यहाँ बास्केटबॉल कोर्ट भी है हमारे पास. तो आपकी यहाँ मेमोरीज है, आप कुछ खेलते थे यहाँ पे? सो ऑनेस्टली हमारे पास खेलने का टाइम ज़्यादा होता नहीं था बिकॉज आवर प्रैक्टिसेस टुक अ लॉट ऑफ आवर टाइम. बट आई एम अवेयर दैट हमारी जो फुटबॉल टीम है दैट यूज्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट इन द इंटायर ड्यू सर्किट. एंड वी हैव अ क्रिकेट टीम ऑल्सो. और ऐसे आप देख सकते हैं दिस सो मच एंथुसियाज्म ऑफ वॉलीबॉल. आई जस्ट रिमेंबर दैट ओवर देयर इन आवर थर्ड ईयर हम अपना प्ले बना रहे थे, द थर्ड ईयर्स ऑफ माई बैच 2017 बैच. एंड हमारे प्ले का एक स्टार्टिंग का सीन है विच इज़ अ वेरी फेवरेट सीन ऑफ मोस्ट ऑफ अस एंड इन द सर्किट ऑल्सो. तो उसका जन्म यहाँ पे हुआ था. वी वर सिटिंग ओवर देयर, इट वाज अ ऑल म्यूजिकल सीन. तो उस समय यहाँ फील्ड में कोई भी नहीं था. एंड आई जस्ट रिमेंबर हमारी डफली, हमारी फ्लूट, हमारा कॉन्गो गूंज रहा था. सो दैट एक्चुअली मार्क्ड अ वेरी स्पेशल डे फॉर ऑल ऑफ अस. सो आई हैव दैट मेमोरी ओवर देयर. हमारे यहाँ पिक्चर भी हुई थी एक बार हमारे बैच की पूरे. हाँ, यहाँ पे सोसाइटी की फोटोज पूरी होती है. पूरा बड़ा ग्रुप हो तो यहीं पे फोटो होती है. हमें हमारी इब्तिदा की टी-शर्ट यहाँ पे मिली थी, आई रिमेंबर. और यहाँ पे एनसीसी की प्रैक्टिसेस भी यही होती है, फुटबॉल टीम की प्रैक्टिसेस, मीटिंग्स भी यही होती है. अरे मक्का यहाँ पे होता है. हाँ, मक्का भी यही होता है. तो ये पूरा सज सवर जाएगा इन अ कॉन्सर्ट मोड. अभी फेयरवेल हुई थी थर्ड ईयर्स की, तो पूरा ऐसे सजा दिया था. पूरा फेयरवेल यही हुआ था, सबने इतना डांस धूम मचाया था यहाँ पे. डिफरेंट वाइब. So this is finally the old acad block of Hindu College. ये तो आपको पक्का याद ही होगा. I am so grateful कि इस old acad block के multiple entry points है because हर stairs पे एक ना दो dogs होते हैं and I'm really scared of dogs. तो मुझे अपना route देखना पड़ता है कि कौन से stairs पे कम dog है तो मैं वहाँ से entry ले सकूँ. lot of entries. और हमारे अभी जो आप एरिया देख रहे हैं दिस इज अ डिसिप्लिन एरिया. हमारी क्लासेस यहाँ पर होती थी सॉरी. एंड एग्जामिनेशंस के टाइम पे इट इज़ बहुत ही ज़्यादा सारे एग्जाम्स इन्हीं क्लासरूम्स में होता है. अभी भी इन्हीं क्लासरूम्स में होते हैं बिकॉज इन्हीं रूम्स में एसी है तो यहीं पे सब कुछ होगा इसलिए. चलिए ऊपर चलते हैं और देखते. दीज आर द कॉरिडोर्स ऑफ द ओल्ड अकैड ब्लॉक एंड दीज कॉरिडोर्स आर ऑल अबाउट कैंपेनिंग, इलेक्शंस. आई रिमेंबर अभी मेरे डिपार्टमेंट के इलेक्शंस हुए थे एंड सब चिल्ला रहे वोट फॉर प्रेसिडेंट, वोट फॉर ट्रेजर. सो इट्स अ होल डिफरेंट वाइब. तो आई एम श्योर इलेक्शंस के टाइम पे आपका अलग ही माहौल होता होगा. इलेक्शंस इन हिंदू कॉलेज आर क्रेजी. और मेरे हिसाब से इफ़ यू आर इन हिंदू एंड यू एक्सपीरियंस इलेक्शंस, ये एक ऐसी मेमोरी जो आप कभी नहीं भूलते. बिल्कुल भी. ड्यूरिंग मक्का, ड्यूरिंग एवरी टाइम. और ये कॉरिडोर्स में हमने बहुत टाइम बिताया है. मेरे दोस्तों ने कैंपेनिंग की है, हमने यहाँ पे बहुत सारी प्रैक्टिसेस की हैं. सिरजा द डांस वेस्टर्न डांस द कोरियोग्राफी सोसाइटी सॉरी, दे यूज्ड टू प्रैक्टिस हियर. आई थिंक अभी भी करते हैं. अभी भी करते हैं. यूज्ड टू प्रैक्टिस हियर. And this is the famous econ balcony. Yes. It's the heart of the Hindu college क्योंकि it's a fresher moment जगह. Because जितने भी लोग आते हैं freshers, उनके Instagram पे first photo यही मिलेगी. Same background, बंदे बदलते रहते हैं, background same रहता है. This is the famous econ balcony of Hindu college. Freshers and farewell both. Whenever we hear the words Ibtida Lawns,
हर हिंदू स्टूडेंट के दिमाग में सबसे पहले यही आता है, द वेरी फेमस ड्रामेटिक सोसाइटी ऑफ हिंदू कॉलेज established by इम्तियाज़ अली, इब्तिदा, एंड यू योर सेल्फ अ स्टीम पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। एंड जैसे सीनियर्स ने हमें बताया कि जैसे ही फ्रेशर्स आते हैं उन्हें पुराने प्लेस दिखाए जाते हैं, और आपका सबसे फेमस मोनोलॉग था वो हमें हमेशा दिखाया जाता है, सारे जहाँ से अच्छा वाला, और अभी तक हमें दिखाया जाता है। सो कैन यू टेल अस योर एक्सपीरियंस एज अ पार्ट ऑफ इब्तिदा फैमिली? Okay, this is going to be the toughest part of the interview, but so this is where I think my life for college and whatever I did after that, वो सब यहीं से शुरू हुआ. So this is the famous Ibtida tree. As you can see, Ibtida is one of the most prestigious dramatic society of the college, and the best part is that it's a society after all, but the bonds that you make here, जो आप चीज़ें यहाँ पे सीखते हैं, जो डिसिप्लिन आपको आता है, जो लाइफ लेसन्स आप सीखते हैं, दैट वाज वेरी स्पेशल. एंड आई रिमेंबर कि इस ट्री पर बैठने के लिए यू हैड टू बी अ थर्ड ईयर, यू हैड टू अर्न इट. अदरवाइज ये जो आप एरिया देख रहे हैं, दिस वाज अ प्रैक्टिस एरिया. अब यहाँ पे घास उग गई है, बट वी यूज्ड टू हैव ऑल आवर सेशंस हियर. और हमें ऊंची आवाज़ में बात करने के लिए कहा जाता था, तो यहाँ पे आके ऑटोमेटिकली आवाज़ थोड़ी वो इनकलकेट हो चुका है. तो फर्स्ट थिंग दैट वी डिड वाज वी यूज्ड टू टेक चक्कर, वी यूज्ड टू प्रैक्टिस, वी यूज्ड टू एक्सरसाइज अ लॉट, स्टैमिना बिल्डअप करने के लिए. यूज्ड टू क्रिएट, वी यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ फन एक्सरसाइजेज एंड बहुत सारी एक्टिविटीज़ जिनसे हम थिएटर के नुआंसेस को सीख सकें. देन दैट इज़ द बेंच ओवर देयर, जैसे आप देख सकते हैं पीछे 2 benches हैं, एंड वी यूज्ड टू हैव आवर percussion sessions there. So I was a percussionist also with the team, and I'm very grateful to my seniors and my batch. तो उन्होंने बहुत चीज़ें सिखाई हैं, and I carry them. And we used to have Baron Baba, हमारे डॉग थे. वो नहीं है हमारे साथ, बट जब भी हम कहीं अपने फेस्ट के लिए जाते थे वो हमें गेट तक छोड़ने आते थे, एंड लाइक दैट. और Even ये वो I- जगह थी, सॉरी. Oh, it's okay. Even I remember that when I first came to the college, there was like this huge crowd जो हम सब आए थे, and we were like क्या हो रहा है, and then we finally saw the dramatic society performing. This was singing the call song of इब्तिदा, मांग के हिंदू आया, and उस टाइम पूरी फील आ गई थी कि अब फाइनली हिंदू में आ गए. सो या मतलब ये वो जगह है जहाँ पे हम बहुत फ्री फील करते हैं, जहाँ पे हमारी सारी क्रिएटिविटी, हमारे सारे फियर्स हम यहाँ पे हर किसी से शेयर करते थे. सो दैट इज़ वाई वी रियलाइज़ कि ओके, हम बहुत हाई माइंडेड होके, बहुत हाई हेडेड होके आए हैं यहाँ पे, बट एक्चुअली वी आर नथिंग. हमसे बहुत बेटर लोग यहाँ पर हैं. एंड अभी भी आई एम वेरी हैप्पी दैट इब्तिदा का जो स्पिरिट है दैट इज़ अलाइव, एंड वी कैरी इट वेरी क्लोज टू आवर हार्ट. And yeah, it's just great to be back. I can go on and on about it, but I think if you are in Hindu, you should definitely try to be a part of Ibtida or any other You'll society. get lifetime memories if We you're a have part of amazing इब्तिदा. societies in Hindu college, not just Ibtida. But मेरा एक हमेशा रहेगा एक थोड़ा bias इसके लिए. So yeah, great to be back. So this completes our Hindu college tour. As a Hindu college student, I'm eagerly waiting for the Mecca Fest to happen because बहुत नाम सुना है लेकिन एक्सपीरियंस करना अभी भी बाकी है. I'm sure in your time, आपके टाइम में मेगा का अलग ही माहौल हुआ होगा. बहुत crazy माहौल था. So it's actually very interesting that we are Hindu college, पर हमारे जो फेस्ट है वो है Mecca Medina. Medina is a theatre fest, but Mecca is one of the best festivals you'll see in DU. Crossroads है SRCC का, and Mecca, these are coveted events, and you एक अलग ग्रैंडियर होता है उस समय कॉलेज में, एक अलग स्पिरिट होती है. एवरीवन इज वर्किंग फॉर इट. द पार्लियामेंट इज क्रेजी ड्यूरिंग दैट टाइम. बट या द बेस्ट थिंग इज दैट हिंदू में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू. आपको अपने लिए कोई ना कोई जगह ज़रूर मिल जाएगी. सो कोई ना कोई ग्रुप बन ही जाता है. इतना फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, यू विल गेट पीपल जिनके साथ तुम्हारी बन जाएगी और पूरी कॉलेज लाइफ निकल जाएगी तुम्हारी. जस्ट लिखवा के ले लो, हिंदू में यहाँ पे एक्सपीरियंस क्रेजी होने वाला है. So just last question for the day. Yeah. Any message or advice you want to convey for the upcoming students of Hindu? Wow. I would just say that experience as many things as you can. अपने आप को लिमिट मत करिएगा, and try to come out of your inhibition. जब हम घरों से आते हैं, स्कूल से आते हैं, हम सब टॉपर्स होते हैं, हमारा दिमाग अलग होता है. But come here with an open mind. You will be a part of one of the most prestigious colleges of the country. And I really hope आप सबको वो सब मिल जाए जो आप यहाँ चाहते हैं, and you have as golden memories as I do, as you would do, as Srajan would do, our cameraman would do. So yeah, I just wanted to thank you for this opportunity. Thank you, Srajan, and thank you to DU Beat for having me back here. It's great, and I really hope जो और भी बच्चे आएंगे उनकी भी memories काफ़ी अच्छी रहे. Thank you. So this was Shashwat Jain for DU Beat.
We hope you enjoyed the video. Thank you so much for watching and please don't forget to like, share, comment, subscribe and अगर Instagram पे है तो please follow कर देना.